इजराइल ईरान दोनों से ट्रंप खफा। इस वक्त बड़ी खबर ये सामने आ रही है। इजराइल से कहा है अपने पायलटों को वापस भेजो। सीज फायर का ऐलान हो चुका है और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है इजराइल से अपने पायलटों को घर भेजो। तो क्या इस नाते वो इजराइल को ये कहना चाहते हैं कि अगर अब सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा? आपको बता दें कि आज ईरान इजराइल युद्ध के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया। उसके बावजूद ईरान की तरफ से एक के बाद एक 3 मिसाइलें दागी गई। इजराइल साफ कर चुका था कि अब वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान के लोगों को हिदायत दे दी थी कि अपने अपने घर खाली कर दो, यानी कि ईरान की तरफ से भी हमला किया जाता। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान बेहद अहम। इजराइल से कहा गया कि अपने पायलटों को घर भेजो, यानी अब हमला हुआ तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब हमला नहीं होना चाहिए, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ शब्दों में कह रहे हैं। बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप का। इससे पहले वो बता चुके हैं सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो भारी पड़ सकता है। ईरान और इजराइल का युद्ध लगातार चल रहा है। They both violated it. I don't think I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning. I don't intend the ceasefire. So the region suggests that the sides accuse each other for violating the ceasefire. So I think they both violated it. I don't think I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all, and I'm going to see if I can stop it. So as soon as I get away from you, I'm going to see if I can stop it, okay? Have you spoken to him this morning? How confident are you that Iran is capable of completely demolished? I think it's been completely demolished. I think the reason we're here is because those pilots, those B-2 pilots, did an unbelievable job. And, you know, the fake news, like CNN in particular, they're trying to say, well, I agree that it was destroyed, but maybe not that destroyed. You know what they're doing? They're really hurting great pilots that put their lives in the line. CNN is scum, and so is MSDNC. They're all, and frankly, the networks aren't much better. It's all fake news, but they should not have done that. Those pilots hit their targets. Those targets were obliterated, and the pilots should be given credit. They're not after the pilots, they're after me. They want to try and demean. You don't believe that Iran can rebuild its nuclear program? Iran will never rebuild its nuclear. From there? Absolutely not. That place is under rock. That place is demolished. The B-2 pilots did their job. They did it better than anybody could even imagine. They hit late in the evening. It was dark with no moon, and they hit that target with every one of those things, and that place is gone. But when I see CNN all night long, they're trying to say, well, maybe it wasn't really as demolished as we thought. It was demolished. You take a look at the pinpricks, and you see that place is gone. And I will say, I think CNN ought to apologize to the pilots of the B-2s. I think that MSDNC ought to apologize. I think these guys really, these networks and these cable networks are real losers. You really are. You're real losers. तो इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को कैसे देखा जाए? देखिए, ऐसा है कि जब इस बात की घोषणा हो गई कि सीज फायर होगा और उसके बाद कोई भी अपने बॉम्ब एक दूसरे के ऊपर नहीं गिराएगा, तो कुछ देर के लिए ये महसूस किया गया कि कुछ बॉम्ब चलाई गई, कुछ मिसाइल्स चलाई गई, जो कि इजराइल की तरफ से तो नहीं, लेकिन हाँ, वो ईरान की तरफ से इजराइल पर चलाई गई। और उस वक्त ये ऐसा लगा कि कहीं वायलेशन तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जिसमें ईरान वायलेशन कर रहा है और वो इस सीज फायर को नहीं मान रहा है। लेकिन बाद में उनके बड़े नेताओं ने इसको स्पष्ट कर दिया और कहा कि जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सीज फायर पर एडहेयर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बात जब तक संदेश के तौर पर इजराइल तक पहुंच पाती, उन लोगों ने इसे एक सीज फायर वायलेशन मान लिया और उसी वक्त जो इजराइल का हैं, वहां के जो रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने कहा कि हम इसका माकूल जवाब देंगे। और ये जो माकूल जवाब देने की बात हो गई, इसने एक तरह से फिर से वो जो पूरा प्रयास था, वो जो पूरी कोशिश थी, उस पूरी कोशिश को अंडू कर दिया
और ये प्रतिक्रिया जो है वो इसी बात पर आई है राष्ट्रपति ट्रंप की, जिसमें वो कह रहे हैं, इजराइल को कह रहे हैं। अमूमन लोग उम्मीद नहीं करते हैं कि अमेरिका इजराइल के बारे में इस तरह से पब्लिकली बात करेगा, लेकिन वो कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि दरअसल ये गलत है, अगर आप इसे आगे लेकर के जाते हैं और बॉम्ब गिराते हैं तो फिर ये वायलेशन माना जाएगा और ये अनुचित माना जाएगा, लिहाजा आप ऐसा न करें। और ये स्पष्ट बात जो साफगोई से कह दी गई है, ये अपने आप में भी एक फर्स्ट है। वो ईरान को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, क्योंकि वो मान रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें कि सीज फायर के घोषणा के बाद भी कुछ लोग होते हैं जो कि यूं ही बस मिसाइल दागे जाते हैं। उसे सीज फायर के वायलेशन की, सीज फायर को तोड़ने की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। और ये प्रतिक्रिया जो आई है अभी अमेरिका के इजराइल के मामले में मना करता हुआ, सीधे अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये आदेश है। देखना यह है कि इजराइल अब करता क्या है। जी संजीव, नाटो शिखर सम्मेलन के लिए वो रवाना हो रहे थे और उससे पहले उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इस पूरी जानकारी के लिए।